देखिए, हम सब लोग अपने अपने स्तर पर, अपने अपने लेवल पर ये कोशिश कर सकते हैं कि जितना हमसे हो पाए, ये हमारा कर्तव्य भी है, हमारा रोल भी है, और हमारा ये इनिशिएटिव भी होना चाहिए कि हम कोशिश करें कि अपने अपने स्तर पर जितना हो सके पॉजिटिविटी को बढ़ावा दें. We all have to collectively try to create a positive impact, and that positive impact will help us in bringing about desired transformation. We all should do for it. We can make small efforts, no problem at all. And those small initiatives, those small efforts can help us in helping us in improving our situation. We all should go for it. See, the surroundings that we are in, we are wherever we are working, in whatever situation we are working, we should all try to contribute towards betterment, and we should try to create positive impact around us. Every year budget comes in the month of February, and I try to write a request letter to the finance minister for some improvements. Some of these ideas may be ignored, but some of them may work. I do not know, but I should make my effort. This year, I requested the government of Rajasthan before budget to start Ayurvedic college in Bikaner. Fortunately, the government of Rajasthan introduced in the budget provision of Ayurvedic college in Bikaner city. I was able to achieve my goal. Why I am sharing it with you? I am sharing it with you because we all as citizens, active citizens, should keep on contributing. You are expert in your domain. If you will give a recommendation to Government of India or to Government of Rajasthan to introduce certain improvement, it will help. This will bring about changes. If tomorrow somebody asks you that the government was raising GST rates very high, you could have raised the voice before the government to reduce the GST rates. Why didn't you raise your voice? Then you can say, yes, I did raise. I wrote a letter to the Prime Minister. I wrote a letter to the Finance Minister. Well, you performed your duty. You've done your duty. Whether your ideas are accepted or rejected, that is a different thing. But you have performed your duty. So that is my request to all of you, that if you get a chance, contribute significantly towards nation building, contribute significantly towards development of your country, contribute significantly towards development of your surroundings. You all can play a very important role in development of your ecosystem, your collective consciousness, and that is what I have been requesting to all of you. We all should play a very important role in development of our surroundings. We have to play the role of a positive and active person. If you develop this as a habit, tomorrow when you will go in a company, you will be able to contribute significantly, because this will become your habit, and that is what we want. We want you to contribute towards creation of a very positive work culture. Nowadays, at the time of recruitment and at the time of promotions, companies look for those people who can create positive work culture. So if you develop that habit, you are able to contribute significantly. In fact, you can
raise these points at the time of interview that you have contributed significantly towards so and so. आपके इंटरव्यू के टाइम आपको अपने आप को दूसरों से डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाएगा कि आप में क्या खासियत है, आपने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए। और आप बता सकते हैं कि आप एक एक्टिव और कंसर्न सिटीजन हैं, आपने ये काम किया है, आपने हमेशा बजट से पहले सरकार से अनुरोध किया है कि जीएसटी रेट को रिवाइज किया जाए या रैशनलाइज किया जाए या ये किया जाए। ये जो आपके जो कंट्रीब्यूशन हैं उसके लिए आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, है ना। उसके लिए आपको अपने आप को जरा सा बदलना है, थोड़े से बदलाव से आप बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप में से कितने लोग इस कोविड के कारण जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आ रही है उनका फायदा उठा रहे हैं। कोविड के कारण दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज आने लग गई। जैसे एक पॉइंट लेते हैं, इस कोविड के कारण सारी कॉन्फ्रेंसेस ऑनलाइन होने लग गई। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब आपको कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले सकते हैं। प्रश्न है, आपने कितनी कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिया? क्या पिछले 1 साल में किसी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया आपने? कोविड को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए। देखिए, आप अगर अपॉर्चुनिटीज स्कैनिंग की कोशिश करेंगे, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपको दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और इन अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करने के लिए आपको अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे कुछ। तो उनको बदलाव को आप एग्जीक्यूट करें, अपने अंदर बदलाव लाएं और उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएं। और अपने यंगर वंस को भी एनकरेज करें। मान लीजिए आपके छोटे भाई हैं, छोटे बहन हैं। अब आपका छोटा भाई है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, मान लीजिए। उसको उसकी इंजीनियरिंग के विषय से संबंधित 3-4 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की लिस्ट दीजिए कि आप इस कॉन्फ्रेंस में भाग लें, इस कॉन्फ्रेंस में भाग लें। वो यूडेमी, कोर्सेरा, एडेक्स पे सर्च करें, उसके फील्ड से संबंधित ऑनलाइन कोर्स, मूक्स ढूंढिए और उसको बताइए कि बेटा आप ये ऑनलाइन कोर्स कर लें, ये ऑनलाइन कोर्स कर लें। तो उससे क्या होगा, आप अपने छोटे भाई के, अपनी छोटी बहन के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करेंगे। पहले आपके छोटे भाई को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की जरूरत पड़ती, एमआईटी जाने की जरूरत पड़ती, आईआईटी जाने की जरूरत पड़ती। अब उसके कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर उसमें इच्छा है वो ऑनलाइन कोर्स अटेंड कर सकता है। वही फैकल्टी जो वहां जाने पर मिलते वही अब ऑनलाइन अवेलेबल। सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अवसर कितने आ गए हैं, इन अवसरों का फायदा लिया जा सकता है। तो इन दिशा में आपको भी काम करना है, दूसरों को भी काम करने के लिए एनकरेज करना है। अवसर हैं, दीज आर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। पर इन गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करने के लिए आपको नया माइंडसेट चाहिए, नई हैबिट्स चाहिए, नया अप्रोच चाहिए। पहले आपको जो प्रोजेक्ट्स मिलते थे, वो एक कंपनी में जाओ, वहां काम करो, उस बिल्डिंग में जाओ, काम करो। अब आपको जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ऑनलाइन डेटा सर्च करना है, एनालिसिस करना है, उसके ऊपर इंटरनेशनल लोगों के साथ में डिस्कशन करना है, समराइज करना है, उस पॉइंट्स को रिकमेंडेशन बना के अपनी रिपोर्ट देना है। पहले आपके पास में लिमिटेड किताबें थी, अब इंटरनेट के ऊपर ई बुक्स का खजाना अवेलेबल है। बेहतरीन से बेहतरीन ई बुक्स अवेलेबल है। पहले आपके पास लिमिटेड टीचर्स थे जो आपको इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर लेक्चर देते थे, और अब
एक से एक बेहतरीन लेक्चर ऑनलाइन रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे जाएं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, इतने एक से एक बेहतरीन लेक्चर्स अवेलेबल।